प्रभु को नाम धन्यवाद हो। ए ख्रिस्टमास सीजन रे जीशु को जन्म उपरे बाइबल अध्ययन करने जो सुंदर सुजोग पाइछु से सदा प्रभु को धन्यवाद करे। आज ए बाइबल अध्ययन निमंते आमे माने बाइबल पढ़िबा माथ्यू लिखित सुसमाचार एक पर्व 18 पद रु 25 जाए। माथ्यू लिखित सुसमाचार एक पर्व 18 रु 25 जाए। एठारे एही पर लिखा जाए, जीशु ख्रीष्टଙ୍କ जन्म एही प्रकार हैला। ताहांको माता मरियमଙ୍କର जोसेफଙ୍କ सहित निर्वाह बंधन ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫ ଧାର୍ମିକ ଥିବାରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶରେ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିବାରୁ ଗୋପନରେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ମନସ୍ଥ କଲା ପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୋସେଫ, ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ମରିୟମଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ହୋଇଅଛି। ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟିଲା। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ଏଥିରେ ଯୋସେଫ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହିପରି କଲେ ଓ ନିଜ ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସହ ବାସ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେଲେ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଏବଂ ଶୁଣିବାରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଚେତନା ଦିଅ, ଯେପରି ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଗଢ଼ିପାରୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଲୁ। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଅଛନ୍ତି କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ? ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଅଛୁ, ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛୁ, ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। 18 ପଦ ଏଠାରେ କହେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲା। ତାହାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମଙ୍କର ଯୋସେଫଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାହ ବନ୍ଧନ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହବାସ ପୂର୍ବେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ସେମାନେ ନାଜରିତ ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଏହି ନାଜରିତ ଗ୍ରାମ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏହା ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ କରି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପୁଣି ପଟେରୀ ୱାର୍କ କରନ୍ତି, କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି ୱାର୍କ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଡେଲି ଲେବରିଂ କାମ କରି ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଏହି ନାଜରିତ ଗ୍ରାମ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ନାଜରିତ ନାମ ଆମେ ବାଇବଲରେ କୋଉଠି ବି ଆମ୍ଭେ ପାଇବା ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମ କେବେ ମେନସନ କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଇଟିଂସ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେ ବହି ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାମକୁ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଯେପରି ଆପୋକ୍ରିଫାରେ ଏହି ନାମ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମିଶନାରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ମିଡ୍ରାସରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଲମୁଡରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇତିହାସକାର ଯୋସେଫସ୍ ତାହାଙ୍କର ଲେଖନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇବା ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ନାଜରିତ ଗ୍ରାମ ନୂତନ ନିୟମରେ
ଲେଖା ଅଛି ତାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଲେଖାଯାଇଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ଜହନ ତାର 1:46 ନିଥନେଲ ଫିଲିପଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନାଜରିତ୍ୟରୁ କଣ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ? ଏହାର ଅର୍ଥ ନାଜରିତ୍ୟ ଅତି ତୁଚ୍ଛ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏହା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେବେ ହେଲେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ନଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଅଶୁଚି ବୋଲି ବି ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏ ନାଜରିତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଙ୍କ୍ଟିଫାଇଡ, ପବିତ୍ରକୃତ କରାଯାଇଥିବା ଗାଁ, ଅଲଗା କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହି ନାଜରିତ ଗ୍ରାମ ଜେରୁସାଲମରୁ 145 ରୁ 150 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ 8 କିଲୋମିଟରରୁ 10 କିଲୋମିଟର 12 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସି ଅଫ୍ ଗାଲିଲି ମହାସାଗରର ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ, ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ଏହି ଗ୍ରାମ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ 3-4 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଫ୍ରେସ୍, ଯୋଉଟା କି ଗାଲିଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ସେଇଠିକି ଯାଇକି ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସକାଳେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ କାମ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଏହି ଗ୍ରାମ ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରାମ ଅଟେ ଏବଂ ଅଗଣ୍ୟ ଏବଂ ତୁଚ୍ଛ ଗ୍ରାମ ଅଟେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନାଜରିତ କଣ ଅଟେ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଜରିତ ଗ୍ରାମ ଅଟେ? ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ କଣ ନାଜରିତ ଅଟେ? କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ କଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାଜରିତ ଅଟେ? କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାଜରିତ ଗ୍ରାମ ଭରି ଅଛି? ଆପଣ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଟାକୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦେବେ। ତ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ଏହି ନାଜରିତ ଗ୍ରାମରୁ ସେମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି। ମରିୟମ ଜଣେ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ। ଧାର୍ମିକର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରେ, ଠିକ ବିଷୟରେ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଭାବେ ଏବଂ ଠିକ ବିଷୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ଧାର୍ମିକ କହିଥାଉ। ପୁଣି ଆତ୍ମିକ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସିଧା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ କହିଥାଉ। ସୋ ମରିୟମ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଗରିବ ଏବଂ ଇଲିଟରେଟ, ପଢା ଲେଖା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ। ସେ ଯାଜକ ପରିବାରରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଂଶଜ ସବୁ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋସେଫ, ଆମେ ଯେପରି ଜାଣିଛୁ, ସେ ନାଜରିତ ଗ୍ରାମରୁ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସରଳ ଏବଂ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ବାଇବଲ କ୍ଲିୟରଲି କୁହାଯାଏ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ଜିଉସ୍ ମାନେ, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଯୁବକ ଏବଂ ଏକ ଯୁବତୀକୁ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମରିୟମ 12 ବର୍ଷରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜିଉସ୍ ୱେଡିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରଥା 3ଟି ଷ୍ଟେଜରେ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କେବଳ 2 ବର୍ଷ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅର ବାପା ମା ମାନେ ଏକାଠି ଆସିକି ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ସେ କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଇଁ, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ବାହାଘର କରାଇବା। ପୁଣି ଝିଅ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥାଏ, ଏଇ 12 ବର୍ଷ 13 ବର୍ଷରେ ସେମାନେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧରେ କଣ, ସେମାନେ
परिवार एवं पुओ झील आसी आउ जड़े जन को शपथ दे था से समय झीर बापा पुअर बापा सब कथबार्ता हुंती कि प्रकार आम मानकर कि एग्रीमेंट अनुसार से विवाह हेबो एहा से माने आलोचना करिथांती। पुणी ए विवाह निबंधर ठीक 12 मास पर से वेडिंग सेरेमनी होता है जोटा कि तृतीय स्तर अटे। ए विवाह निर्बंध पर युवकटा पुओटा निज पिता सहित निज गृह को जाए थाए एवं से गृह को गला परे पिता निज पुत्र पाई एक गृह निर्माण करती एवं सेमानकर जीविका पाई एक कार्य पंथा को से माने खोजी दे थांती। ताहा कार्य पंथा पाइला परे एवं निज पाई गृह निर्माण करी सारिला परे से गोटे वर्ष पर झील घर को आसिकी से झील को नहीं जाए थाए एवं निज गृह रे 7 दिन वेडिंग सेरेमनी से माने पालन करी थांती खुशी मनाई थांती। यह ही जीशु ख्रीष्ट से शिष्य मान को कहते कि मो पिता गृह रे अनेक घर अच्छी मु जीवी ताहा प्रस्तुत कर सारा पर मु आपण मान को आनी आसबि। ख्रीष्ट रे मोर प्रिय माने यही समय यही 3टा स्टेज यही निर्वाह बंधन पर जड़े पुरुष जड़े स्त्री पुरुष स्त्री को निजर स्वामी बा निजर स्त्री भाव रे ग्रहण करि थांती। यद्यपि से माने शारीरिक भाव रे एक स्थान रे न रुहंती किंतु से माने एक होई से माने रुहंती। एहा परे जदि ए विवाह निर्बंध पर जदि किए मना करि थाए ताहले लीगल डाइवोर्स प्रक्रिया रे सेटा शेष होई जाय थाए। एही परिस्थिति रे सेमक निर्वाह बंधन हेथिला। पुणी आम एटा देखुचु मरियम गर्भवती हेई अछि बोली जना पड़िला। लोक पुस्तक आमे देखुचु सेठे एमानकर नेगोसिएशन सेमानकर बंदोबस्तर किछि समय पर गाब्रिएल दूत आसी मरियम सहित कथा कहते हे आग नारी तुमे सदा प्रभु को ठारो अनुग्रह पात्री अट। सदा प्रभु पवित्र आत्मा को साहाय्य तुमे गर्भवती हेबो एवं तुम्हे एक पुत्र को प्रसव करिबो एवं तुमरी काजिन सिस्टर एबे गत बयस रे से मध्य 6ठ मास गर्भधारण करियछंती। एहा तांको पाई एक विश्वास देवा पाई एक शब्द थिला। आ यहाँ पर आमे देखुचो स्वर्गदूत जतले पळेले से स्वर्गदूत पळेला परे मरियम निजर काजिन सिस्टर पाखको से जाओछंती जो कि 6-7 किलोमीटर पर से ग्राम अवस्थित। से ग्राम को जाइके निज काजिन सिस्टर जो एलिजाबेथ को मिसुछंती आउ तांको सहित सेठारे 3 मास पर्यंत रहुअछंती। जेतेबेले 3 मास रहिला परे एलिजाबेथ जेतेबेले 9 मास पूरी जाउची से आसुछंती। मरियम जेतेबेले निज गृह नाजरेत को फेरी आसुछंती से समय पर जोसेफ को जना पड़ुची कि मरियम गर्भवती है अच्छी। ख्रीष्ट मोर प्रिय माने जीशु को जन्म देवा पाई मु पुनर्बार पुनरावृत्ति करने चाहूँगी। जोसेफ एवं मरियम को द्वारा आमे फर्स्ट ख्रीष्टमास ए पृथ्वी रे पाइलु। अवश्य ख्रीष्टमास सदा प्रभु परमेश्वर दे अछंती किंतु जोसेफ एवं मरियम को द्वारा आमे पृथ्वी रे पाई अछु। से माने ए प्रथम ख्रीष्टमास आनिबा जोगु आपण एवं मु जीशुंकर परिचय आमे पाइलु एवं परित्राण पाइलु। किंतु आम पड़ोसी थिबा अनेक लोक माने आम आखपाख गाँव थिबा अनेक लोक माने एबे पर्यंत जीशु ख्रीष्ट को से माने पाई पारि नाहंती। तेणु आपण एवं मते जीशु को जन्म करबा को पड़िबो। आपण आ मते ख्रीष्टमास अन्य मानू को देबा को पड़िबो। तो एठारे आपण मानकु ए प्रश्न करबा पई चाहे ख्रीष्टमास प्रस्तुति करबा पई आपण की प्रकार प्रस्तुत करू अछंती। आजिर ए वाक्य को आमे आलोचना ध्यान करबा निमंते आमे जोसेफंकर 5टी गुण आमे माने देखिबा। जोसेफ की प्रकार प्रस्तुत होई से प्रथम ख्रीष्टमास ए पृथ्वी को देइथिले। प्रथम भावना प्रथम स्टेप प्रथम रिएक्शन जोसेफ होची एक्साइटमेंट। जेतेबेले से मरियम सहित तांकर निर्वाह बंधन हेथिला
से निर्वाह बंधन पाई से अति उत्साहित थिले कहीं आम मान जीवन रे जेतेबेले गोटे झील पाई गोटे पुओ पाई कथबार्ता होता है ताहले गोटे झील पुओ पाई अति आनंदर खुशी होता है जोसेफ मध्य से परे एक युवा भाव में मरियम को नहीं अनेक स्वप्न से देखुंटे मु मरियम को नहीं कि यही प्रकार गृह निर्माण करी यही प्रकार परिवार गठन करी अनेक स्वप्न देखुंटे किंतु निर्वाह बंधन जस्ट 3-4 मास पर जना पड़ुअछि कि मरियम गर्भवती अटंती तो प्रथम जो इमोशनल रिएक्शन जोसेफ रो थिला एक्साइटमेंट एंड जस्ट आफ्टर दिस एक्साइटमेंट से यही खबर पाई शॉकिंग होछंती से स्तब्ध होछंती से अचंबित आश्चर्य होछंती जो झियो पाई बोली एतिकी से स्वप्न देखिछंती जो झियो धार्मिक भाव रे गणित होउथिला से व्यभिचार करी से गर्भवती है अछि एहा तांको जीवन रे शॉकिंग होछि ख्रीष्ट रे प्रिय माने आमे माने जतबे यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करू तांको आमे माने ग्रहण करू सेतबे आम मान को जीवन रे महा आनंद लागे यीशु को नहीं आमे बड़ बड़ कार्य करिबा को आमे अनेक स्वप्न नै थाउ आमे प्रति शपथ मध्य नै थाउ किंतु जतबे आमे ख्रिस्टियन जीवन यापन करिबा पई आरंभ करू अनेक आम मान को रास्ता रे जीवन रे एटा करबा को पड़िबो नै एटा करबा को पड़िबो नै एमती करबा को पड़िबोनी जतबेले आम सम्मुख रे आसुछि सेतबेले आम मान को शॉकिंग लागुछि मु कोन एहा करि परिबिनी मु कोन एहा करि परिबिनी एहा आम मान को पाई शॉकिंग होछि जेपरि जोसेफ मध्य ठीक तार गर्भवती रो खबर पाई से शॉकिंग होछंती एनु से शॉक होछंती से स्तब्ध हैला परे तांको जीवन रे तृतीय रिएक्शन कन्फ्यूजन आसी जाउची से निज जीवन रे दुविधारे पड़िछंती मु कोन करिबी वर्तमान जो झियो सहित मोर विवाह निर्बंध हेथिला जो झियो निमंते मु अनेक स्वप्न मु देखिथिली एबे मु कोन करिबी से कन्फ्यूजन रछंती मु कोन करिबी तांको जदी से आम मानक समय रे जुबा हे थांता मो परि जने जुबा हे थांता ताहाले मो सम्मुख रे 4टी रास्ता अछि से 4टी कार्य मरियम को निमंते से करि पारि थांते प्रथम काम हैला जे मरियम जोसेफ विरुद्ध रे काम करी अछि जोसेफ को विश्वासघात करी अछि जोसेफ को अपमान देई अछंती तेणु करी मु चिंता करि थांती मरियम को मध्य जिहुदी मानक समाज गृह रे समाज आगरे मंडली आगरे ताहाको अपमान करिबा पाई मु चाहि थांती जेपर आमे देखुछु लेवी पुस्तक यात्रा पुस्तक एवं द्वितीय विवरण लेखा अछि गोटे युवती जदि निर्वाह बंधन परे से कौनसी व्यक्ति अन्य पुरुष सहित से जदि व्यभिचार करे ताहाले सेई झियो को मंडली सम्मुख रे आनी प्रस्ताराघात करिके तांको मृत्यु वरण करा जाय थाए तो मो पाखरे मु ताको परिशोध नेबा पाई से जो मो प्रति कार्य करिछि ताहार रेवेंज नेबा पाई मु एहा करि थांती किंतु जोसेफ ताहा करू नांती द्वितीय स्टेप मु कोन करि थांती कि तांको तांकर पेट को आवर्षण करी मु ताहाको शांति रे मैं छाड़ी दे थांती बा मु तांको बाहा हेबा पाई मु चिंता करि थांती तृतीय विषय से 2टी परिवारों को डाकी ताहार असुविधार कारण एही घटनार कारण कौन बुझिकी समाधान करिया पाई चिंता करि थांता जोसेफ किंतु ए सबु करू नांती जोसेफ तांको मन रे अनेक प्रश्न आसी जाउछि सी की प्रकारे अन्यर पिला को से बढ़ेबो बा से की प्रकारे एक व्यभिचारिणी स्त्री को से ग्रहण करिबो जोसेफ धार्मिक थिबारु से तृतीय रास्ता को ग्रहण करूछंती से गोपन रे से धार्मिक थिबारु तांको गोपन रे तांको छाड़िबा निमंते से मनस्थ करूछंती निर्णय करूछंती ख्रीष्टन मोर प्रिय माने
जो माने धार्मिक व्यक्ति जो माने यीशु को ग्रहण करिसंती विश्वासी माने केबे है आउ जड़े व्यक्तिर प्रतिशोध से माने नेबे नहीं से माने प्रभु को ऊपर छाड़िबे जेतेबेले समाज बा अन्य व्यक्ति आम मान को अपमान दिए आम मान को निमंते दुख पहुंचाए आम मान को निमंते हानिर कारण हुए सेतेबेले से मानकर दोष को छाड़ी दिया जाए थाए जेपरी आम मान को हितोपदेश 19:11 कहे मनुष्य रो सुबुद्धि तांको क्रोध रे धीर करे पुणी दोष छाड़िबारे ताहांकर भूषण अटे प्रभु ख्रीष्ट मोर प्रिय माने आंभे माने यीशु को रक्त द्वारा किणा जाई अछु एवं यीशु ख्रीष्ट आम मानकु ए पृथ्वीर समस्त प्राणी उपरे पुणी शैतान रो शक्ति उपरे शासन करिबा आमान को आह्वान देई अछंती तेणु एही पद एही वाक्य कुहे जे मनुष्य मैन इन अथॉरिटी यह राजा को बुझाए राजा केबे है प्रजा मानकर छोट छोट दोष को से काउंट करते नहीं गणना करते नहीं केवल प्रजा माने छोट छोट दोष को गणना करी जड़े जड़े आउ जनक सहित से वाद विवाद करिथांती बा गंडगोल करिथांती किंतु राजा अन्य मानकर दोष को छाड़ी देथांती यीशु ख्रीष्ट आपण को एवं मते एक राजकीय वंश भाव में आह्वान करी अछंती एणु आपण एवं मु जेते जन आम विरुद्ध रे अपमान करुछंती सेमाने मन को दोष देउछंती सेमान आम मानकर हानि करुछंती सेमानकर दोष को आमे गणना करिबा दरकार नाही पुणी एब्रिय 2:17 रे कहा जायछि विश्वासी माने होसंती जाजक गण अटंती आउ जाजक मानकर प्रथम कार्य कि पापी मानकर पाप को ईश्वर को सम्मुख रे प्रायश्चित करिया पाए ख्रीष्ट मोर प्रिय माने यदि आमे माने जाजक हेई जदि अन्य पापीर अन्य व्यक्तिर पाप को गणना करिबा आउ सेमान को क्षमा देबानी सेमान को दया देखाइबानी ताले सेमाने प्रभुंकर परिचय पाइबेनी तेणु आम्भे माने न्याय को पसंद जड़े पापी निमंते ताहले से पापी को आमे ईश्वरंकर परिचय दे पारिबा नाही ठीक एही प्रकार जोसेफ जड़े धार्मिक व्यक्ति थिबा जोगो तांकर हृदय दयारे विगलित होछि सेई मरियम को लोकमानक सम्मुख रे अपमान करिबा पई चाहंती नाही सेमान तांको दोष रे काउंट करिबा पई चाहंती नाही एहा आंभ मानक निमंते अति एक शिक्षणीय विषय अटे तेणु जेते बेले से गोपन रे तांको परित्याग करिबा पई चाहंती सेही समय गाब्रिएल दूत स्वप्न रे तांको कथा कहछंती हे जोसेफ तुम्हें भय कर नाही मरियम कौनसी व्यभिचार करी से गर्भवती होई नाही बरं ईश्वरंकर अनुग्रह पात्री होई अछि पवित्र आत्मा को द्वारा से गर्भवती होई अछि एवं से एक पुत्र प्रसव करिबो पुणी ताहांकर नाम तुम्हें जीसु देव आउ जोसेफ प्रथम से एक्साइटमेंट होछंती तापर से शॉकिंग होछंती पुणी से कन्फ्यूजन को आसुछंती एई कन्फ्यूजन हला परे द्विविधा हला परे से जतेबेले स्वर्गदूत तांको देखा जाउछंती तांकर समस्त द्वंद्व तांको मुंडरू उभे जाउछि आउ से दूतंकर से शब्द को से विश्वास करुछंती निज हृदय को से संकल्प नै अछंती आ एठार देखुछि से तांकर जतिकी अनाबना चिंता थिला ताहा सब भूली जाउछंती एवं प्रभुंकर वाक्य उपरे से विश्वास करू अछंती एठारे जोसेफ हो ना किछि भी कथा कहि नाहंती किंतु से नीरव रे रही एक साइलेंट ओबीडिएंट व्यक्ति भली से ग्रहण करू अछंती आउ एहा कथा हेला परे स्वर्गदूत चली जाऊ अछंती से जतबे निदर उठिले से बुझी पारिले आउ दूतंक अनुसारे कहिथिबा अनुसारे से करिबा पई मनस्थ करू अछंती मरियमंकर गर्भवती रो 3-4 मास परे सेमानकर बाहाघर हेउछि
आउ यही समस्त विषय जो माथ्यू जिहुदी मानकु जीशु विषय प्रमाण देवा निमंते से जिहुदी मानकर धर्म पुस्तक आणिकी से कहउछंती देख ए समस्त विषय यही जिनिस निमंते घटिला। देख जड़े कन्या गर्भवती हो पुत्र प्रसव करिवे आउ लोके ताहांको नाम इमानुएल देबे। यही नामर अर्थ आम मान सहित ईश्वर, जोटा कि जिसाय भविष्यत वक्ता 700 वर्ष पूर्वर से भविष्यवाणी करथिले कि जड़े कन्या एक युवती जे पुरुष को जानी नहीं से युवती एक पुत्र को प्रसव करिबो। जिसाय भविष्यत वक्ता से वर्जिन बार्थ पाई से कहते जड़े कन्या जे पुरुष को जानी नहीं से पुत्र प्रसव करिबो। यही वर्जिन बार्थ क्यों कहीं आमे माने देखुछु आदि पुस्तक 3:15 रखा जाए सदा प्रभु निजे कहती कि स्त्री और शरीर जात तुमर मुंड को से चूर्ण करिबो। यह कहते यही जीशु ख्रीष्ट जदि साधारण परिवार जन्म होता जो कि स्त्री एवं पुरुष वैवाहिक गृह जदि जन्म होता ताहले जीशु ख्रीष्ट जड़े नाचुराल मैन प्राकृतिक मनीष होता जे कि जार पाप जो आदम ठारू आम मान को डाउनवर्ड पास होची जीशु ख्रीष्ट मध्य जड़े पापी हे पारि थांती किंतु से पवित्र आत्मा को द्वारा से जन्म हेबा सत्वे जो आदमर पाप जो पास हो आसुछि जेनेरेशन टू जेनेरेशन ताहा पास हे पारुनी पुणी यहाँ सिनलेस जीजस होछंती। ये पाप शून्य हेबा सत्वे ए पृथ्वीर पाप सब बही नहीं से कालवर क्रूसरे क्रूसबोध करुअछंती। एणु ए वर्जिन बार्थ अति आवश्यक थिला जे उद्धार करता परमेश्वर जे ए पृथ्वी को ए मनुष्य को पापरू उद्धार करिवे। यही सब विषय पर विश्वास कर सारा पर जोसेफ जो वेडिंग सेरेमनी रो कार्य गुड़ाक थिला से निदर उठिला एवं निज पिता सहित कथबार्ता है से तांको विवाह कले। पुणी ए जीशु जन्म न हेबा जाए से माने केबे हेले स्वामी स्त्री रो संपर्क रखिले नहीं। आउ जीशु जन्म हेला परे जीशु को से माने बढ़ेबा निमंते से माने प्रस्तुत हेले। प्रिय ख्रीष्ट मोर प्रिय माने आज यही वाक्य आमने शिखुअछु। जोसेफ ए पृथ्वी को प्रथम ख्रीष्टमास देवा निमंते से 5टी स्टेज रे कले। प्रथम एक्साइटमेंट अति उत्साह रे जीशु को सहित जीवन जापन कले। जीवन जापन कर करू जो छोट छोट बाधा विघ्न आसिला से बाधा विघ्न पाई से शौक हेले ताको आश्चर्य लगिला जीशु को फॉलो करिबा पाई हेले मते एहा करिबा नै एहा करिबा को पड़िबो नै ए रास्ता रे जीवा को हेबो नै एही जिनिस गुडा को ताहांको अशांति देउथिला। एही अशांति तांको तृतीय रिएक्शन थिला कन्फ्यूजन मु जीशु को ग्रहण करिबी ना आउ कहा को मु ग्रहण करिबी। ख्रीष्ट मोर प्रिय माने आम मानको जीवन रे वास्तविक एहा आसु अछि आमाने केहू रास्ता को आमे आमे पसंद करिबा जेपर जीशु ख्रीष्ट कहउछंती कौन से विश्वासी दुई मास्टर रो उपासना करि पारिबो नाही। दुई जन को से अनुगमन करि पारिबो नाही। आज आपण एवं मु ए पर अनेक समय कन्फ्यूजन हेउछ किंतु जो माने वास्तव रे सचोट भाव रे कन्फ्यूजन हे थांती धार्मिक माने सदा बेले सचोट भाव रे कन्फ्यूजन हे थांती आ जते बेले कन्फ्यूजन दुविधा रे पड़ी थांती द्वंद्व रे पड़ी थांती ईश्वरक वाक्य ताहांको एहा समाधान करि थाए। तांको जीवन रे एक रिजोल्यूशन आनी थाए एक संकल्प आनी थाए। आम मानकर प्रत्येक कन्फ्यूजन यही बाइबल रे लिखा जाई अछि। ए बाइबल पठन द्वारा प्रार्थना करिबा द्वारा आम मानक जीवन रे जो सब दुविधा आसुछि ताहा समाधान हे थाए। तेणु तांकर चतुर्थ होछि से संकल्प को आसंती स्वर्गदूत कथा कहिला परे से संकल्प नेउछंती कि सदा प्रभु मते कौन कहउछंती ताहा मो जीवन रे मु करिबी। पुणी शेष रे
ଏକ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଓବିଡିଏନ୍ସ। ସେ ନିରବର ସହିତ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ କରିକି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଯାହା କହିଲା ତାହା ହୃଦୟର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେ ତାହା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମେରିଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ। ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବି ରିସ୍କ ଅଛି ତାହା ସେ ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜି କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଦେବା ପାଇଁ? ଆପଣ ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆପଣ ଦେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଏହା ଅତି ସରଳ ବିଷୟ ନାହିଁ, ସରଳ ବିଷୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅତି କଷ୍ଟକର। ଏହା ଏକ ତ୍ୟାଗମୂଳକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି କି? ଆପଣ କଷ୍ଟ ଦେଇ କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋସେଫ ନିଜର ଦୁଃଖ ସବୁ ଭୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ବାହା ହେଇଛି, ଅନ୍ୟର ପୁଅକୁ ସେ ବଢ଼ଉଅଛି। କେତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମାଜରେ ସବୁ କେତେ ବଦନାମ ତାଙ୍କୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ସେ ବହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି କି? ଆପଣ ଆଜି ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯୋସେଫ ଯେପରି এই 5ଟି ଷ୍ଟେଜେସରେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜକୁ ଯାଇକି ଆମେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।